A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed about the various theoretical and practical approach for the term one examination and the concept which are totally based on the multiple choice questions. And the chapter is chapter number 4, that is an admission of a new partner. यू नो वेरी वेल, जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट करता है, सो व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर, इन दिस सिचुएशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट विल बी मेड. द फर्स्ट विल बी फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वी adjust the goodwill on the basis of the sacrificing ratio between old partner, and there are the lots of cases related to the goodwill, that is an valuation of goodwill, measurement of goodwill, and accounting treatment of goodwill. And there are lots of cases related to the goodwill when new partner brings his share of goodwill in cash, or when new partner does not bring his share of goodwill in cash. So there are two situations, या तो गुडविल लेकर आएगा या लेकर नहीं आएगा. सो व्हेन न्यू पार्टनर एंटर्स इन द बिजनेस एंड ब्रिंग्स गुडविल इन अ कैश, सो देयर आर टू सिचुएशन, या तो कैश में लेकर आएगा या पेड प्राइवेटली करेगा. सो जब वो पेड प्राइवेटली करता है, यानी गुडविल लेकर आता है और अमाउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करता, यानी द अमाउंट ऑफ द गुडविल पेड बाय द न्यू पार्टनर इज प्राइवेटली. सो इन दिस सिचुएशन देयर विल बी नो एंट्री will be passed, and if the new partner entered into the business and he brings his share of goodwill in cash, so in this situation the existing goodwill, the amount bring by the new partner as a goodwill, must be distributed among old partner in their sacrificing ratio. As well as if we are talking about the next situation when new partner does not bring his share of goodwill in cash, यानी नया पार्टनर जब गुडविल लेकर नहीं आता कैश में, तो उस सिचुएशन में करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करते हैं. तो ये बहुत तरह की सिचुएशंस हैं, क्राइटेरियाज हैं वाइल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो लेट्स वी डिस्कस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच आर गिवन इन योर बुक, that is in question number 27, and these type of the question are very useful for while you solving the while preparing for the term 1 examination, because term 1 examination is totally based on the multiple choice question. So the question number 27 says that Aditya and Shiv were partners, yani there are two partners, Aditya and Shiv are two partners, and the capital of Aditya is 3 lakh, capital of Aditya is 3 lakh, and capital of Shiv is rupees 2 lakh. And the one more very important information, Nana was admitted as a new partner for 1/4 share, and Nana brought, नैना क्या क्या लेकर आ रही है? नैना लेकर आ रही है 1,20,000, कितने रेशियो के लिए? 1/4 के लिए. नैना को कितना शेयर मिल रहा है? 1/4 मिल रहा है, और इसके लिए वो कैपिटल कितना लेकर आ रही है? द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज 1,20,000, एंड वो गुडविल कितना लेकर आ रहे हैं? गुडविल इज 1,20,000. Goodwill is 1,20,000, whereas the capital is 2,40,000. And question says that the amount of the goodwill premium credited to Aditya. So आदित्य को कितना गुडविल मिलेगा? देखिए बेसिकली मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ. सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली जब नया पार्टनर आता है तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, एंड नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है. So नया पार्टनर का नाम है नैना, सो नैना's capital to premium for goodwill. The amount of the capital, नैना कितना कैपिटल लेकर आ रही है? 2,40,000, and what is the amount of the goodwill is 1,20,000. So total amount कितना आया? 3,60,000.
सेकेंड, यू नो वेरी वेल, जो गुडविल है ये गुडविल कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आदित्य एंड शिव। इन विच रेशियो? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री विल बी अ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आदित्य कैपिटल टू शिव्स कैपिटल। And what is the amount of goodwill? Is 1,20,000. And what is the ratio? What is the old ratio? In this question, the information of the ratio is not given. यानी इसमें old ratio given नहीं है, तो जब भी कोई क्वेश्चन में old ratio given नहीं होता है, so we will treat it as an equal. ऐसा नहीं कैपिटल के बेसिस पे 3:2. No. इस सिचुएशन में जो old ratio है आदित्य और शिवा के बीच में, वही उनका sacrificing ratio भी बन जाएगा. वही इनका क्या बन जाएगा? Sacrificing ratio भी बन जाएगा. So what will be the sacrificing ratio between Aditya and Shiv? Is 1:1. And what is the amount of premium for goodwill? Is 1,20,000. And the goodwill is 60,000 for each. देखिए क्वेश्चन में क्या था? Because in this question there is no information about the sacrificing ratio and old ratio. एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल सिचुएशन. आपको मैंने बताया भी है क्लास में कि सिंपल सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है कि जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन होती है पीएसआर से रिलेटेड. एक ओल्ड वाले को ओल्ड रेशियो क्या था और नया क्या है, और कोई इफ बट यहाँ नहीं लगा हुआ है. सो प्लीज नोट डाउन. एंड देयर आफ्टर वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, और उसे हम लोग एमसीक्यू बेसिस की तरह सॉल्व करेंगे. यहाँ तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन व्हेन यू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इतना लॉन्ग लास्टिंग वे अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है. यू विल गिव योर आंसर डायरेक्टली. कॉन्सेप्ट याद करिए, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए था, उस बेसिस पे आप क्वेश्चन को डायरेक्टली क्या करिए, सॉल्व करिए. Now let's we move to the one more question related to the accounting treatment of goodwill, because this question is very popular for the MCQ question point of view. ठीक है, so let's we discuss about it. The question is question number 31. A and B are partners in the ratio of 2:1. और ये इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपके रेशियो वाले क्वेश्चन भी चेक कर लिए जाते हैं एग्जामिनर के थ्रू. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 31 सेज दैट ए और बी का जो रेशियो था वो था आपका 2:1 एंड C is admitted as a partner. A and B surrender 1/2 of their respective share. So C आ रहा, इसमें लिखा है C आ रहा है और C को क्या मिल रहा है, A और B अपना अपना हाफ मतलब आधा, हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव. हाफ मीन्स व्हाट, 1/2. किसका 1/2? 2/3 का. और यहाँ किसका हाफ, 1/3 का. सो A और B जो हैं वो C को अपने अपने शेयर का 1/2 प्रोवाइड कर रहे हैं. आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, C is to be bring his share of goodwill in cash. The goodwill of the firm is estimated as 60,000. So goodwill of the firm is 60,000. So first of all हमें C की गुडविल निकालनी पड़ेगी और ये निकालनी पड़ेगी कि A और B को कितनी गुडविल मिलेगी, क्योंकि जनरली यही क्वेश्चन हमारा होता है. So let's discuss about it. A से कितना मिलेगा, 2/6. B से कितना मिलेगा, 1/6. So in totality it will be a 3/6. ओके, सो C को कितना मिलना है, 3/6, या कह सकते हो 1/3, 1/2. ओके, 2/3 का हाफ मतलब 2/6, 1/3 का हाफ मीन्स 1/6. टोटलिटी इट विल बी 3/6. 3/6 मतलब 1/2, यानी C ने ऐसा न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है, उसे कितना मिल रहा है, 1/2. और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 60,000. सो C की गुडविल कितनी है, C की गुडविल है 60,000 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 30,000. C की गुडविल कितनी है, 30,000. ओके, अब सवाल उठता है कि व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इट
It is very clear in this question. You can see that 2 and 1 because A अपना शेयर का 1/2 और B अपनी शेयर का 1/2 दे रहा है. So the sacrificing ratio will be 2:1. So ये जो 30,000 है वो कौन दे रहा है? वो C दे रहा है A और B को किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग, यानी 20,000 एंड 30,000 10,000. सो पहली एंट्री क्या होती है अगर गुडविल आ रहा है? सो बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG. कितने गुडविल है? 30,000. और ये 30,000 गुडविल किसको मिल रही है? A को और B को. किस रेशियो में? 20,000 एंड 10,000. ओके, सो इस क्वेश्चन में पूछा क्या था बेसिकली 31 में? द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी एस्टिमेटेड 60,000. क्रेडिट विल बी गिवन टू. क्रेडिट किसको मिलेगा? A और B को. कितना कितना? 20,000 एंड 10,000. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नोट डाउन कर लीजिए. Now we are moving to the next type of the question. The question will be A, B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2. Profit and loss in the ratio of 3:2. And this is a question number 36. ये जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 36 का जो है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी. ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है आपके व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर गुडविल और इन कैश. यानी कि ये कंडीशन है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश. यानी जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है. ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है. इट मीन्स क्वेश्चन जब बहुत लेंदी होते हैं, बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, हॉरर वाला क्वेश्चन है. ठीक है, तो A और B पार्टनर्स हैं 3:2 में. सो द रेशियो विल बी बिटवीन A एंड B इज 3:2. C आ रहा है 3/10 के लिए. C gets 3/10 and A surrender 1/3 of his share. C जो है 3/10 के अलावा उसमें लिखा हुआ है A जो है अपने शेयर का 1/3. A जो है 1/3 of his share, अपने शेयर का 1/3, और B जो है अपने शेयर का 1/4. ठीक है, A surrender 1/3 of his share, whereas a B surrender 1/4 of his share. ठीक है, the next information, goodwill of the firm is 3 lakh. Goodwill of the firm is 3 lakh, and very important condition is also given. C is unable to bring his share of goodwill. C is unable to bring his शेयर ऑफ गुडविल. C जो है गुडविल लाने में असमर्थ है. C गुडविल नहीं लेकर आ रहा है. ये पूरी कहानी है. सो C गुडविल ला ही नहीं रहा है, तो आपको पता है इस सिचुएशन में क्या होता है, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की जगह न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट हम डेबिट करते हैं. सो जब गुडविल नहीं ला रहा है तो सिंपल से पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/3 ऑफ हिज शेयर. सो 1/3 into 3/5 and 1/4 of his share 2/5. वेरी सिंपल. हाफ ए शेयर का मतलब A का शेयर क्या है 3/5, B का शेयर क्या है 2/5. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A कितना सेक्रीफाइस करा है 1/5, B कितना सेक्रीफाइस करा है 1/10. सो अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1/5 and 1/10. एलसीएम लेंगे 10, 2:1. सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 2:1. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 2:1. गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 3 लाख. सो C की गुडविल कितनी होगी, दूसरा स्टेप हमारा 3 लाख का 3/10 यानी कि 90,000. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख और 3/10 इज C का शेयर कितना है 3/10. सो 90,000
90,000 सी का गुडविल है, तो सी का करंट अकाउंट क्या होगा, क्योंकि सी तो गुडविल ला नहीं रहा है, तो सी का करंट अकाउंट डेबिट होगा 90,000 से और टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन विच रेशियो, इन 2:1। सो ए को 60,000 और बी को 30,000 गुडविल मिलेगा फ्रॉम सीज करंट अकाउंट। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग क्रेडिट विल बी, क्रेडिट किसको मिलेगा, ए और बी को, किस रेशियो में, 60,000 एंड 30,000। नोट डाउन कर लीजिए। ओके, so after solving this the question when new partner does not bring his share of goodwill, let's we discuss some of the logical question, that is a HOTS question, higher order thinking skill questions. ओके, एंड इस तरह के क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन का जो पैरामीटर है वो इतना ज़्यादा है इस चैप्टर में कि लगभग मान के चलिए कि 5 to 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देयर विल बी इंटरनल चॉइस। सो क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, goodwill of a firm of A and B is valued, question 52, question number is 52 and very simple question 54, goodwill of the firm, फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है आपकी 30,000 एंड वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, इट इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 12,000, ठीक है, इट इज appearing in the books at 12,000 and ये लिखा है it is appearing in books, बुक्स में कितना शो हो रहा है 12,000। गुडविल की वैल्यू 30,000 है, लेकिन बैलेंस शीट के जो एसेट साइड में गुडविल शो होती है वो कितनी शो हो रही है, ओनली 12,000। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4, सी आ रहा है 1/4 के लिए एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग what amount he is supposed to be bring for goodwill। तो C को कितनी गुडविल लानी होगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये जो गुडविल है इट इज अपीयर इन द बुक्स, ये जो गुडविल है दिस गुडविल इज कॉल्ड गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो यू नो वेरी वेल C को कितना गुडविल लाना चाहिए, C को गुडविल लाना चाहिए दैट इज एन, it is also based on the goodwill of the firm, it is always based on this, that is an 7,500। ये कंफ्यूजन होगा, आप सोचेंगे कि 12,000 का 1/4 होना चाहिए, नहीं, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है इट विल बी राइट ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, इसे राइट ऑफ किया जाता है ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी के थ्रू, इसे राइट ऑफ किया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, और जो नए पार्टनर की गुडविल डिटरमाइन होगी वो डिटरमाइन होगी ऑन द बेसिस ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। सो द राइट आंसर इज 7,500, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which are also related to this chapter, and the chapter topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. So what is this? This is a revaluation of assets, यानी हम अपनी एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हैं और अपनी लाइबिलिटीज को रीअसेस कर रहे हैं, फिर से असेस कर रहे हैं। इट इज अ सिचुएशन यू नो वेरी वेल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में। सो इन दिस सिचुएशन इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंजेस होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस होता है, अप्स होता है डाउन्स, अप्स होता है टू डाउन्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सो इस चेंजेस वैल्यू को, एसेट्स का बढ़ना घटना, लाइबिलिटीज का बढ़ना घटना, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सवाल उठता है इट हैज अ 2 टाइप्स, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में कि एसेट्स की वैल्यू का अप डाउन होना और लाइबिलिटीज की वैल्यू का अप डाउन होना हम बेसिकली 2 पार्ट में डिसाइड करते हैं। पहला पार्ट ए एंड पार्ट बी, या केस ए केस बी।
केस ए ये कहता है व्हेन न्यू पार्टनर, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जो हम रिवाइज्ड वैल्यू है, यानी जो न्यू वैल्यू है एसेट्स एंड लायबिलिटी को, उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। एक है कि हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और एक कह रहा है रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना नहीं चाहते। अगर रिवाइज्ड वैल्यू को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, BOA मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिचुएशन में आपको याद होगा वी हैव टू प्रिपेयर दी रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट में चेंजेस को शो करते हैं। इफ डेबिट इज एक्सेस इन कंपैरिजन टू क्रेडिट इज कॉल्ड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है इट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। बट व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्ड, अगर रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अगर रिवाइज्ड वैल्यू हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो सिचुएशन में जो गुडविल का जैसा ट्रीटमेंट होता था, याद होगा आपको, इस सिचुएशन में लोग क्या करते थे, गुडविल का जैसे ट्रीटमेंट करते थे। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करते थे एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करते थे। और थोड़ा सा उसको लिंक करिए एडमिशन के केस में, विच पार्टनर हैव टू गेन ड्यू टू द चेंज इन ड्यू टू द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो कौन गेन करता है, न्यू पार्टनर। एंड हु विल बी सैक्रिफाइस्ड, ओल्ड पार्टनर। सो द एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू old partners capital account, in which ratio, in their sacrificing ratio. Note down all the things, and thereafter we are moving to the solution of the practical question. The first question, which are related to the valuation of which are related to the revaluation of assets and liability, and it is a very famous question also. The question number 55. A and B are partners in firms in the ratio of 3:2. C was admitted for 1/5 share of profit. C क्या है, नया एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन ले रहे हैं, and the information says that, what will the information? The information says that machinery would be appreciated by 10%. मशीनरी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई, तो हम रफ में क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मशीन की वैल्यू क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई, so by machinery. What will the book value of the machinery? It will be 80,000. 80,000 का कितना appreciate हो गया, 10%. 80,000 का 10%, it will be 8,000. Now machinery की value up down हुई. Building would be depreciated by 20%. Building क्या हो गया, depreciate हो गया 20% से, so 2 lakh का 20%, it will be 40,000. बिल्डिंग की वैल्यू डिक्लाइन हो गई. अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ 1250 वुड बी ब्रॉट इनटू बुक्स नाउ. अनरिकॉर्डेड डेटर मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इट विल बी अ प्रॉफिट. सो अनरिकॉर्डेड डेटर, unrecorded data, what will the amount of unrecorded data? The amount of unrecorded data is 1250. It will also the profit for the business. And creditors 2750 died. creditors क्या हो गए, 2750 के खत्म हो गए. नीड नॉट पे एनीथिंग, अब पे करने की जरूरत नहीं है. सो इट विल बी अ प्रॉफिट. And what will the amount? It will be your 2750. So 2, 3, 4, 12,000. इधर भी कितना आना चाहिए, 12,000? No, it will be a 40,000 loss. There will be a 40,000 loss. Okay, because बिल्डिंग की जो वैल्यू थी डेप्रिशिएटेड हो गया 20%. So it will be a loss. 40,000 इधर भी आना चाहिए. So 12,000 आ रहा था. So loss कितना आया? Loss on revaluation is
28,000. So the correct answer is loss on revaluation will be a 28,000. Yes, the option number A is correct. और आपको पता है कि जो रिवोल्यूशनरी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स यानी ए और बी, सो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू revaluation. What is the amount of loss on revaluation is 28,000, and in which ratio? In their ratio of 3:2. It means 3/5 and 2/5. Okay, so this is the solution of the very famous question. Please note down. Okay. So in today's video we saw the different question from the different topic of the chapter number 4, that is an admission of a new partner, and it is a very important chapter for the MCQ point of view. So I requested to each and every student, please solve the maximum practical question given in your book. Please practice, because practice makes a man perfect. Thank you. Goodbye.